Hello and adab. I am Dr. Mantasha Binti Rashid, and I am again here with you with a conversation with two very important women. As you know, this podcast we call Koshish, a balance. So, in this podcast, we try to explore the lives of women, women who struggle, women who thrive, women who face biases and discriminations, yet they emerge, women who are achievers, who are authors, women who are service providers. So, in this podcast specifically, we try to bring to you women who are achievers or the issues that concern women, or sometimes both. So, today we are going to have a discussion on a very important issue that concerns the society, not just women. And this issue is domestic abuse or domestic violence. I have with me two very important women. One is Saima Shah, who is working in Special Cell for Women. Special Cell for Women is basically a program, a project of Tata Institute of Social Sciences, and it is funded by National Commission of Women. And under this Special Cell for Women, in all 20 districts of Jammu and Kashmir, they have established small cells, mostly within police stations, where they try to support women who face any kind of violence, particularly domestic abuse. Hello, Saima. Hello, ma'am. And we have with us Malik Shugufta. Shugufta works in One Stop Center, which is OSC. She's basically a practicing lawyer, but after that she switched to OSC. One Stop Center is a service which basically is provided to women who are in distress, who need help. It's basically also a helpline with the number 181 on which women can call when they need any support or assistance. So, Saima, I'll start with you. Like we were just having a conversation before the camera was switched on, and we were talking about how domestic violence and abuse is defined. What can we call domestic violence? Kya hota hai? Give us a picture. Yes. Basically, domestic violence is any kind of violence that is imposed within the domestic system, within a domestic system. And we can define domestic violence, it can be caused by in a married couple, by your husband or in-laws, or by your live-in partner, or within the natal family, that is your parental family before marriage. It is not necessary that domestic violence only exists in married couples or in a family where you're living with your in-laws or your husband. It can happen through your parents, it can happen through siblings. So any woman who is facing domestic violence on the basis of marital family or natal family is a survivor of domestic violence. Right. Yeah. And violence is in itself a broader theme, which we will come to next, that Definitely. what constitutes as violence. And also, Saima, a quick question. Is it just that women only face violence at home? No, not necessary. I would say these are all power dynamics, and any human being which is on a lower level, apparently on a lower level, so said, one who is In the lowest rung of weaker, hierarchy, let's power say, hierarchy. who is weaker than the other person, is subjected to violence in the form of controlling behavior. For example, let's say a child. A child is more susceptible or more vulnerable to violence than An adult. than an adult. Right. Similarly, a woman who is weaker, or let's say who is considered inferior to a man, is more vulnerable to violence than a man. Similarly, a man from let's say supposedly there are class dynamics Absolutely. that exist in the A richer society. family. We cannot deny that. Absolutely. So if there is a man in the household who is weaker, let's say who's belonging to a lower class economically or in any other manner, can be subjected to violence by a woman who is Better than him in more many powerful, parameters, yes. more powerful than him. So these Very- are all power dynamics. Absolutely, basically. you rightly said they are power dynamics. So I was having this discussion around power dynamics in one of the gender workshops, and one person said that how can you say a woman is weaker or a child is weaker? It's not necessary. So I said, okay, let's forget home. Let's talk about office. Let's say you are very frustrated, you have a very bad day. Now you enter office. So who do you likely scream at? Do you scream at your chaprasi, Subordinates. your orderly, your subordinate, or will you go and Slap your boss. Slap your boss. What is the likelihood? So he got it. He said, yeah, very likely I'll speak badly with my subordinate. So that's it.
I think there is no further discussion on the understanding of power dynamics, what power dynamics are. Shagufta, so you in OSC see various kinds of violences and you see domestic abuse, जैसा कि साइमा ने कहा that it's basically a power dynamics और बहुत सारे forms होते हैं. So I'll ask you, OSC में कितने calls आते हैं एक दिन में, how many cases get reported, किस किस्म के होते हैं, ज़रा बताएं थोड़ा सा. मैं पहले आपका शुक्रिया करूँगी कि थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी कि अगर मैं इस मुद्दे पे किसी हद तक बात कर पाऊँ. देखिए, अगर हम OSC की बात करेंगे, आई विल टेल यू अबाउट मी लाइक व्हेन आई वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर. तो यूजुअली क्या रहता है कि लॉयर्स का एक ड्राफ्ट रहता है रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस केस विच वी फाइल अंडर सेक्शन 12. तो खाली ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है कि पार्टीज़ का नाम चेंज करना पड़ता है, इवन तो थोड़ी बहुत स्टोरी लिखनी पड़ती. व्हेन आई स्विच टू OSC तो मुझे ग्राउंड लेवल रियलिटी पता चली कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ देयर. डोमेस्टिक वायलेंस को हम अगर ब्रॉडर लेवल में ब्रॉडर सेंसेस में लें, इट्स घरेलू तशद्दुद. घरेलू तशद्दुद मीन्स जो आपके साथ वायलेंस होता है विद इन द 4 walls ऑफ योर राइट हाउस, which is generally considered a safe space, सेफेस्ट प्लेस. तो जब सेफ स्पेस पे आपके साथ तशद्दुद हो तो डायनेमिक्स डिफरेंट तो होती है. आई वोंट से कि डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स उठा के डंडा पीटो. मारपीट. इट्स नॉट ओनली डोमेस्टिक वायलेंस. हाँ, इट्स वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. बिल्कुल राइट. इमोशनल वायलेंस इज देयर, जहाँ कि एक मैं बताऊंगी लड़की आगे जाना चाहती है स्टडीज़ के लिए. शी इज़ बीइंग सेड कि क्या करना है आगे जाके, डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्या करना है आगे जाके. और मैं कश्मीरी में ही कहूँगी पगाछुई लुखुंद गरगसुन, कि उसको पता है कि शायद मेरे ड्रीम्स बस ड्रीम्स ही रहने हैं. कल को मुझे दूसरे घर में, जो वो दूसरे घर में उसका कंसेप्ट रहता है कि उसको पता है कि शायद मेरा कोई अपना घर है नहीं, जब मैं इस घर में मतलब सेफ नहीं, मेरी प्रायोरिटीज़ को सबसाइड किया जाता है, दूसरे घर में क्या ही हो सकता है. नाउ आपने अभी पूछा कि OSC में राइट नाउ आई डू हैव 363 केसेस registered. 363 women, 363 families, 363 like I should say कि villages, क्योंकि गांधरबल मेरा तो पर्टिकुलर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ही है. उन 363 women के साथ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे फेजेस से वो निकली हुई हैं, क्या कैसे कैसे उनके ड्रीम्स शैटर किए गए हैं. तो कहीं ना कहीं इंसान का दिल ही दुख जाता है. दिन में इट्स नॉट लेस देन कि मेरे पास 10-15 कॉल्स आती हैं. राइट. कॉल्स आती है, मैम ऐसे ऐसे हुआ. और जहाँ पे विमेन कभी ऐसे प्रिपेयर्ड होती है, हाँ ठीक है मेरा हस्बैंड मुझे पीटे, लेकिन रात में नहीं दिन में पीटे, क्योंकि रात में मेरा घर से फिर भागना मुश्किल हो जाता है. लाइक she is preparing herself for everything. She has prepared herself for this kind of violence. कहीं ना कहीं एक normalization of violence है. Normal, completely normal for herself. मैम रात को क्या हो जाता है कि फिर बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है. दिन में मैं कहीं जा सकती हूँ, रात में पॉसिबल नहीं है. तो Saima, accepting violence as an everyday norm, accepting it as your destiny, accepting it as a social reality, क्या वजूहात है, क्यों है ऐसा? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी J&K में हम लोग डिनाइल में हैं. हम डिनाई करना चाहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं. Many a times, I am not saying there are people who are very much aware now और वो धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं. डिनाइल कहाँ से आता है? आई थिंक लगता है कि मेजॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम्स की है, तो लगता है कि नहीं, हम तो औरतों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमारी औरतें तो बहुत खुश हैं, हमारी औरतें तो उनको तो हमने पूरे हकूक़ दिए हुए हैं घरों के अंदर. हमारे मज़हब में तो ऐसा होता हमारे है, मज़हब में प्रैक्टिकली कुछ और ही होता है. प्रैक्टिकली कुछ और है. जैसे कि अक्रॉस द वर्ल्ड डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है. जैसे आपने अभी WHO का डेटा भी बताया कि 1 out of every 3 women has faced violence in her lifetime. Similarly it's here in J&K and हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सेप्ट करना शुरू करें. पहला ही स्टेप जो है, अगर हमें डोमेस्टिक वायलेंस को रिड्यूस करना है, उसके खिलाफ
जाना है, आवाज़ उठानी है, तो हमें सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको एक्सेप्ट करना है कि वायलेंस यहाँ पे होता है। दूसरा एक और जो मिथ है कि डोमेस्टिक वायलेंस शायद किसी पर्टिकुलर क्लास या कास्ट या किसी रीजन में नहीं होता है। एग्जैक्टली। वायलेंस जो है, पहली बात तो डोमेस्टिक वायलेंस को ये माना जाता है इट्स अ प्राइवेट अफेयर, कि घर की चार दीवारी में होता है तो घर की चार दीवारी में ही सुलझाना है। वी शुड नॉट बी द केस, इट्स अ सोसाइटल इशू, इट्स नॉट अ प्राइवेट इशू, इट शुड कम आउट इन पब्लिक और ये बोला जाना चाहिए। और डोमेस्टिक वायलेंस अकर्स अक्रॉस ऑल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, हर जगह, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वर्किंग क्लास हो, नॉन वर्किंग क्लास हो, एग्रीकल्चर फार्मिंग के सेक्टर में हो, कहीं पे भी हो, इट अकर्स एवरीवेयर। डायनेमिक्स डिफरेंट है, डायनेमिक्स डिफरेंट है। एक मिडिल क्लास औरत जब पिटती है तो वो छुपा लेगी, काला चश्मा पहन के आ जाएगी, अगले दिन वो बहुत साइलेंट रहेगी इस बारे में। अगर कोई रूरल एरिया की या बहुत गरीब घर की फीमेल होगी, वो तो निकलेगी और चिल्ला भी सकती है उसके बारे पे वो घर की इज्जत का बोझ शायद कम ही रहता है, थोड़ा कम रहता है। या हाई क्लास, हम बोलेंगे सो कॉल्ड हाई क्लास, जो इवन हमने IAS ऑफिसर्स के केसेस देखे हैं, हमने पुलिस के केसेस देखे हैं, वुमेन पुलिस ऑफिसर्स के केसेस देखे, हमने कहाँ क्या क्या, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, इतने सारे डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग जो खुद इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। तो लेट्स नॉट डिनाई। इवन हमारा जो डेटा है, इवन स्पेशल सेल फॉर वुमेन इज़ अ स्मॉल इनिशिएटिव, इट स्टार्टेड जस्ट 3 years बैक इन 2021, इट स्टार्टेड ऑलमोस्ट 3.5 years होने लगे। तो जब हमने शुरू किया तो पहले ही हमें जब सर्वेज हुए या परमिशंस लेनी पड़ी, बिकॉज वी कंपल्सरीली वर्क विद इन द पुलिस सिस्टम, तो हमें बोला गया कि कश्मीर J&K में तो वायलेंस है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, सब अच्छे से हंसी खुशी रहते हैं, अमन से रहते हैं घरों में। ऐसा नहीं है, ऐसा जैसे हर जगह वायलेंस है दुनिया में, कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है। ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में वायलेंस नहीं है। तो जब हमने शुरू किया ये सारा प्रोजेक्ट, तो हमने ये रुकावटें फेस की, और अभी जब हम देखते हैं आज के दौर में 8,800 ऐसे केसेस हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड है फॉर लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन। अगेन रजिस्टर्ड केसेस इज नॉट इक्विवेलेंट टू केसेस हैपनिंग, और क्योंकि रजिस्टर काफी कम होते हैं आउट ऑफ नंबर ऑफ केसेस। कुछ उसमें से ऐसे हैं जिनके साथ हम वन टाइम इंटरवेंशन करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू गो फर्दर, उनके अपने वजूहात होते हैं उस चीज़ के लिए। तो 8,800 ऐसे हैं जो फुली हमारे पास रजिस्टर्ड है। उसके अलावा वन टाइम इंटरवेंशन के भी बहुत सारे केसेस, एंड दीज आर विद दिस स्मॉल इनिशिएटिव ऑफ स्पेशल सेल फॉर वुमेन हमारे पास कितने आए पिछले 3 सालों में। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, इट्स अ ह्यूज एक्सप्लोजन, कि कितने ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा। हमने कुछ वी रेगुलरली डू आउटरीच एक्टिविटीज़। तो एक इलाका है, इट्स अ फार फ्लंग एरिया, जब हमने उनको बोला आपके साथ तशद्दुद होता है, उन्होंने बोला तशद्दुद क्या होता है, हमें पता नहीं, ऐसे मारपीट होती है, थप्पड़ मार, हाँ होता है। फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते हैं। पुलिस के पास जाना चाहिए, जाते हो? अच्छा, अगर मारपीट होती है हम उसके लिए पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। तो ऐसी भी औरतें हैं, ऐसा भी फार फ्लंग एरियाज है जिनको इतनी भी अवेयरनेस नहीं है, हम कहाँ जा सकते हैं अगर हमारे साथ तशद्दुद हो। पहले तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि तशद्दुद है। दूसरा, अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर भी लिया, उनको पता भी नहीं है हमें जाना कहाँ है, तो ऐसे अनरिपोर्टेड कितने होंगे? जितने इतने तो हमारे पास रजिस्टर्ड 8,800, उसके अलावा वन टाइम में भी हज़ारों केसेस हैं। फिर उसके अलावा कितने अनरिपोर्टेड हैं, और बाकी सर्विसेज के पास कितने जाते हैं। Like you said rightly, Saima, that many women within homes do not know that there is a support system, there is an institutional support, and there is a Domestic Violence Act of 2005, which basically mandates such reporting, and also has provisions wherein a woman who is facing violence can be helped by way of finances, by way of reserving a space for her within the home, or by way of maintenance. बाकी बहुत सारे वसाइल और बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अब जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी डायनेमिक्स ऐसी होती है कि आपको अपने घर के लोगों के खिलाफ जाना होता है। तो साइकोलॉजिकली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना मुश्किल है। अगर सड़क पे आपके साथ कोई हादसा हो, या ऑफिस में कोई आपके साथ छेड़छाड़ करे, डिस्क्रिमिनेशन करे, हैरेसमेंट करे, तो शायद वहाँ
फिर भी किसी हद तक आसान है, बट गोइंग अगेंस्ट योर ओन फैमिली मेम्बर, और कल को एट द कॉस्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, कल को शायद अगर आप रिपोर्ट करें ये रिश्ता टूट भी सकता है। फिर कल को आपके पास क्या प्रोविजंस हैं, क्या ये औरत कहाँ जाएगी? और ऐसा नहीं है कि यू नो सोसाइटी इज सेइंग ओके वेलकम, आपके साथ ऐसा हो रहा है, हम आपके लिए कुछ करने को तैयार है। तो इस सिचुएशन में शगुफ्ता, व्हाट डू यू प्रोवाइड, व्हाट डज OSC प्रोवाइड टू दीज वुमेन, व्हाट आर द सर्विसेज यू ऑफर? मैम बेसिकली वहाँ पे 5 सर्विसेज होती हैं। फर्स्ट इज़ द साइकोसोशल काउंसलिंग। ओके, साइकोसोशल काउंसलिंग में क्या रहता है, कभी कोई औरत ऐसा इशू लेके आती है जहाँ पे उसको पता भी नहीं होता है हाउ आई एम गेटिंग हर्ट बाय दिस इशू। एंड सेकेंड इज़ द दिस लीगल एड जो हम प्रोवाइड करते हैं, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज। हाँ, जहाँ पे एक लेडी, मैं आपको बताऊंगी मोस्ट ऑफ द इश्यूज जहाँ पे यहाँ कश्मीर में होते हैं प्रॉपर्टी इश्यूज, जो एक लेडी को डिनायल मिलता है अपनी बेसिक राइट से, अपनी बेसिक प्रॉपर्टी राइट से, जो उसके फादर की तरफ से पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिलती है डिस्पाइट और लेडीज का ये होता है कि मैंने लिख के दे दिया है, चलो मुझे नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो दूसरी फैमिली में जो उसकी मेन फैमिली होती है वो फेस करती है वो इश्यूज कि यू डोंट हैव एनीथिंग, यू डोंट हैव अ फाइनेंशियल स्टैंडिंग बेसिकली इफ यू आर नॉट वर्किंग। तो अब मैं मैम जाना चाहती हूँ कोर्ट, वहाँ पे वकील साहब की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं तो है। लीगल काउंसलिंग, लीगल सपोर्ट, सेकंड डोमेस्टिक वायलेंस में उसको केस फाइल करना पड़ता है। शी इज नॉट रेडी बिकॉज शी इज नॉट फाइनेंशियली लाइक इंडिपेंडेंट, या उसके पास होते लीगल एड, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है हमारे पास, जहाँ पे शी इज गिवन फ्री लीगल एड टू। एंड थर्ड वन देयर इज पुलिस फैसिलिटेशन, जहाँ पे एक लड़की को चाहिए एक पुलिस की सर्विस या लॉजमेंट ऑफ एफआईआर होता है कहीं पे, उसके लिए भी एक हेजिटेशन होती है, पुलिस स्टेशन जाना ही बहुत बड़ी चीज होती है एक औरत के लिए। प्लीज वी जस्ट कांटेक्ट विद द पुलिस कि ऐसे ऐसे लड़की को चाहिए पुलिस सपोर्ट चाहिए, शी इज गिवन दैट। या देयर इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है, इफ मैं थोड़ी शाई, I don't want to face the court trials. Right. Video conferencing facility is there. Right. Yeah, there is temporary shelter. जहाँ पे एक लेडी ना उधर की रहती है ना इधर की रहती है, शी डजंट फील, वो उसको सेफ नहीं लग रहा है अपने वहाँ पे, क्योंकि मार पिटाई अक्सर, आई टेल यू कि एक ऐसा भी केस था जहाँ पे रात के दोपहर में एक लड़की, शी वाज हाइडिंग हरसेल्फ इन द मेज फील्ड्स एंड इट वाज रेनिंग लाइक एनीथिंग। उसके घर के कौन से इलाके में था? फ्रॉम गांधरबल एरिया, एक पार्पलंग एरिया है वहाँ से। एंड आई वेंट टू हर हाउस, आई गेस रात के 1 बज रहा था, 1 AM, yes of course. उसने आपको कॉल किया? बिल्कुल, शी कॉल्ड मी कि मैम ऐसे है, मेरे हस्बैंड ने घर की कुंडियाँ सारी लगा के रखी, मुझे बाहर फेंक दिया है, एंड शी वाज हाइडिंग हरसेल्फ, एंड उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, कहाँ जाती वो उस वक्त? तो मुझे लगता है उस वक्त के नहीं, शायद I am here to give her such kind of service. Right. So they are the services. Five days का temporary shelter मिलता है। अगर हमें लगे कि she needs to extend the shelter facility, application करते हैं concerned deputy commissioner को, तो shelter extend भी कर सकते हैं। So like Malik Shagufta said, there is a provision of temporary shelter in OSC. लेकिन देखा जाए तो Domestic Violence Act जो है वो mandate करता है, provide करता है, if I remember correctly, Chapter 5 में, कि जो shelter home है for women in distress वो होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जम्मू में एक बन चुका है, लेकिन कश्मीर में अभी भी एक परमानेंट शेल्टर होम फॉर विमेन नहीं है, और जो कि होना चाहिए, एक बहुत बड़ी समाजी ज़रूरत है। अगर आप घर से ठुकराए हुए हो, तशद्दुद के शिकार हो, परेशानी के शिकार हो, तो कहीं ना कहीं आपको सर छुपाने की एक सेफ जगह होनी चाहिए, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है। साइमा, कमिंग टू यू, मैं जानना चाहूँगी कि किस टाइप के वायलेंसेस स्पेशल सेल ऑफ वुमेन में रिपोर्ट होती है, क्या सपोर्ट करते हैं आप उनका वहाँ पर? डेफिनेटली। तो पहले तो किस टाइप के वायलेंस होते हैं, एज़ वी ऑल नो कि डोमेस्टिक वायलेंस 4 किस्म का होता है। पहले तो होता है फिज़िकल वायलेंस, जो बिल्कुल अपेरेंटली दिखता है, चाहे उस लड़की के साथ या औरत के साथ मारपीट हुई हो, बाल खींचते हैं या उसको किक करते हैं, ड्रैग करते हैं, घसीटते हैं, उस तरीके के जो होते हैं केसेस, वो हम देखते हैं। और ऐसा होता है वेरी कॉमन। फोन पे बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन शी वाज शोइंग अस सम पिक्चर्स, वेरी कॉमन, ब्रूजेस के, हर्ट्स के, अच्छा खासा होता है, और उसमें इंस्टेंटली हम
मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो सोशल वर्कर है वो खुद अकम्पनी करते हैं इनको हॉस्पिटल में और ट्रीटमेंट कराते हैं, और जो भी मेडिको लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, सपोर्ट होगा, वो भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरा वायलेंस टाइप है इमोशनल वायलेंस, जो बहुत ही साइलेंट वायलेंस फॉर्म ऑफ वायलेंस है, जो बिल्कुल अपेरेंट नहीं है, जिसमें मान लीजिए ह्यूमिलिएशन, बॉडी शेमिंग, कंटिन्यूस कंट्रोल एक औरत के ऊपर, जैसे कि या डाउरी डिमांड्स। यहाँ पे कश्मीर में कोई भी ऐसे डायरेक्ट डाउरी डिमांड नहीं होती, बहुत साइलेंट और इनडायरेक्ट तरीके से डाउरी डिमांड्स होती है जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे बोलते हैं कि सास बोलेगी कि देखो मेरी जो बड़ी बहू है वो ये लेके आई थी, वो लेके आई थी, मैंने अपनी बेटी को ये दिया, वो दिया। मतलब दिन भर जो सुबह से लेके शाम तक एक औरत जो है वो कंटिन्यूस कई बारी इमोशनल वायलेंस फेस करती है। और साइमा, इसमें यूफेमिज्म्स भी हैं हमारे सिस्टम में। हम कहते हैं कि हशकंठ, ज़मदज, ये हमारे कस्टम्स है। हम ये नहीं कहते हैं कि डाउरी है। तो अगर आप बख्श मुसरवैन, हाँ, तो हम अगर पूछेंगे कि क्या डाउरी होता है तो कहते हैं नहीं, यहाँ तो नहीं होता। लेकिन फिर अगर आप थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि नेचुरली मेरी पढ़ाई भी इस चीज़ में है, मैंने जेंडर पे ही काफ़ी काम किया है, ग्राउंड पे भी और एकेडमिकली भी, तो मैंने इन कस्टम्स को स्टडी किया है इन डिटेल। तो ये दिस इज नथिंग बट अ यूफेमिज्म फॉर डाउरी। एब्सोल्युटली। ये रिचुअल्स कस्टम्स जो हैं, या दावतें किस किस्म की होती है कंटिन्यूस, और उसमें कितनी देखा देखी होती है कि ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसे नहीं पका था, वैसे नहीं पका था। इनडायरेक्टली हजार चीज़ें होती हैं। और शायद लेट मी इंटरप्ट यू हियर, एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि शायद दावत के ही दो रीजंस होते हैं जो बड़ी दावतें होती हैं दिखावे के। एक ये कि हमारी फैमिली का नाम हो, लोग कहे हमने ये किया, वो हासिल किया, एक तो वो है। दूसरा ये कि कल को हमारी बेटी जिस घर जा रही है उसको वहाँ पे शायद अच्छे से ट्रीट करे। दे विल थिंक कि दे वर सर्व्ड वेरी वेल, दे वर ट्रीटेड वेरी वेल। और कहीं ना कहीं एक हिपोक्रेसी, एक दिखावे की बुनियाद पे जो शादी है वो उसकी बुनियाद रखी जाती है। और जिस घर की नींव ही कमज़ोर हो, बाउंड्री या जो क्या कहते हैं उसको हम, प्लिंथ को, बेस ही जिसकी कमज़ोर हो, तो फिर आगे वो स्ट्रक्चर भी कमज़ोर ही रहता है। सो यू वर टॉकिंग अबाउट इमोशनल वायलेंस। जी, तो इमोशनल वायलेंस में इसके अलावा थ्रेटनिंग, वो डर बैठा के रखना, उस जो भी परपेट्रेटर उसके ऊपर डर बैठा के रहता है, हर चीज़ के बारे में थ्रेटन करता है, धमकियाँ देता है, वो भी इमोशनल वायलेंस में आता है। या ये कहना कि आई डोंट लाइक योर फैमिली मेंबर्स, दे शुड नॉट कम हियर, यू शुड नॉट स्पीक टू योर, कट ऑफ करना, उसका सपोर्ट सिस्टम ग्रेजुअली कट ऑफ करना कि मेरे को तुम्हारी बहन नहीं पसंद, बस मुझे पसंद नहीं है, वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। वहाँ जाओ तो तब जाओ अपने पेरेंट्स, इवन दो अपने ही पेरेंट्स से मिलने के लिए। जहाँ पे कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स इल होते हैं या पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटी आए, और कोई जेन्युइन रीजन भी होता है कभी, नहीं मेरी इजाज़त के बगैर नहीं जाना। जब एक लड़की आपके पेरेंट्स का इतना ख्याल रखती है, मैं आई फील प्राउड कि चलो ठीक है, मुझ में इतनी सलाहियत दी है अल्लाह ताला ने कि मैं एक बच्चा भी पाल सकती हूँ, बच्चे को 9 महीने कोख में भी रख सकती हूँ, घर भी संभाल सकती हूँ, ऑफिस भी संभाल सकती हूँ, आपके पेरेंट्स को भी संभाल सकती। व्हाई नॉट माय ओन पेरेंट्स, राइट? मुझे तो खाली उनको देखने जाना है। इट्स नॉट लाइक आई हैव टू डू दैट एवरीथिंग देयर, मेहमान बन के ही जाना है। आई डोंट थिंक वी नीड अ रीजन टू मीट आवर पेरेंट्स, फॉर हेवन सेक। वो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमको पैदा किया है, हमारी परवरिश की है, हमारी अपब्रिंगिंग की है। जैसे एक हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, वैसे ही एक वाइफ के भी पेरेंट्स हैं। उसको क्यों इतना रोकना है? या सिबलिंग से कहते हैं कि एक रोल होता है मायके का, कभी कभी मायका प्लेज अ बैड रोल, अ बैड इन्फ्लुएंस। तो वैसा आपने कहीं देखा है इन योर केसेस, या शगुफ्ता आपने देखा है कि कभी कोई अनडू इंटरफेरेंस होती है मायके की तरफ से? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस ऐसे। अभी पहले मैं आपको बात बताऊं कि अभी हम कह रहे थे इमोशनल वायलेंस, आजकल तो ऐसी भी बिद्दत बन गई कि तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट अच्छा नहीं था। दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड्स जो आजकल चल रहा है। क्या मेकअप किया था तुमने? कीपिंग दिस असाइड, अगर हम कहेंगे कि मायके की तरफ से जो एक लड़की को नहीं ये आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगी, यहाँ थोड़ा वो नेगेट होता है। लड़की, इट्स नॉट ऑलवेज कि लड़की के साथ वायलेंस हो रहा है। अगर लड़की, मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग लाइक एक लड़की को पहले ही अपने जहन में ये भी रखना चाहिए कि
अगर मैं मुझे किस दूसरे घर में दूसरे जा रही हूँ, माहौल वहाँ में का जाना सेटअप कैसा है? वहाँ अभी तो 1-1.5 साल लगता है इंसान को एडजस्ट होने में Right, ही। right. मैं अपने घर में हूँ, देयर इज़ अ टाइम कि अगर मेरे एग्जाम्स हो या आई एम नॉट फीलिंग वेल, माई मदर विल लाउ टू सर्व मी। बट वहाँ कोई करेगा या वहाँ नहीं पहले करेगा? मुझे अपने लिए करना है। आई हैव टू मेक माई माइंड प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स कि नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा। Right. तो देन मुझे लगता है द रिलेशनशिप विल गो स्मूथ। हाँ, अगर मैं अपनी मम्मा का थोड़ा बहुत डांट सुन लेती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, मेरी मदर इन लॉ को भी इतना राइट है कि वो मुझे बता सकती है कि नहीं जी, आपको ये खाना है, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ। आई शुड नॉट टेक दैट थिंग अदरवाइज। So, coming back to Saima, so you said there is physical violence and there is emotional violence. फिर थर्ड एक वायलेंस का फॉर्म है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक पार्ट है, विच इज़ सेक्शुअल वायलेंस। इसके बारे में अभी भी काफ़ी चुप हैं लोग, इवन सर्विस प्रोवाइडर्स भी कई बारी अवॉइड करते हैं ऐसी कॉन्वर्सेशन, जबकि मैं एनकरेज करूँगी, हाँ, जबकि मैं एनकरेज करूँगी कि वो यहाँ से एक्सप्लोर करें, डेफिनेटली सेक्शुअल वायलेंस एक्सप्लोर करें, क्योंकि कई बारी रूट कॉज भी सेक्शुअल वायलेंस हो सकता है। कई बारी इफ द कुछ केसेस did you face any such cases? यस, डेफिनेटली हम तो काफ़ी सारे ग्रूसम सेक्शुअल वायलेंस भी देखते हैं अपने रोज़मर्रा के काम में, बट वो मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहती, जस्ट नॉट टू स्कैंडलाइज, बट एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कई बार इफ़ द मैन इज़ इम्पोर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल, वो नहीं तो वो बाहर ही नहीं आती वो बात, क्योंकि वो जो औरत है वो बोलती है ये मुझे मारता है, ये मुझे गुस्सा करता है, मुझे यहाँ नहीं जाने देता, ये मुझे वहाँ नहीं जाने देता, ये शक करता है मेरे ऊपर, बट एक्चुअल रीज़न ये होता है ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म, या इवन उसकी वजह से दे डोंट हैव अ चाइल्ड, मतलब बहुत चीज़ें होती है, एंड शी इज़ नॉट एबल टू ओपन अबाउट इट। आप एक बार एज अ सर्विस प्रोवाइडर उससे बात करके देखो, अगर आप उसको यहाँ से 1-2 क्लूज दोगे, 2 बार 3 बार पूछोगे, डेफिनेटली शी विल ओपन अप। हाँ, मगर एनवायरनमेंट वैसा होना चाहिए, ये नहीं कि हम पुलिस सेटिंग में तो 4 वहाँ पे पुलिस वाले भी बैठे हैं, वो बाकी लोग भी, गिव हर दैट एनवायरनमेंट जहाँ वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो, उसका ट्रस्ट बिल्ड करो, उसको एक्सेप्ट करो जैसे भी वो है, जजमेंटल मत हो जाओ उसकी तरफ। जब वो आपके साथ, जब आप एम्पैथाइज करोगे उसके साथ, तो डेफिनेटली वो आपको बताएगी। Right. So there is sexual violence, emotional, physical, and then financial. And then fourth one is फाइनेंशियल या इकोनॉमिक वायलेंस। उसमें एक सबसे बड़ा वायलेंस होता है मेहर के बारे में, जो आप लोगों को पता है कि मेहर जो है वो उसके बगैर निकाह ही पॉसिबल नहीं है। मुस्लिम सोसाइटी मेहर इज अ पार्ट ऑफ जो मेहर कई बार उसको मिलता नहीं है, बस फॉल्स प्रोमिसेस रहते हैं कि अभी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, मगर अदा नहीं होता है फुली। या फिर मेहर मैनिपुलेट करके मर्द जो है उसका ले जाता है, उसको देता है, बोलता है मैं दुकान खोलूंगा, ये करूंगा, मैं तुम्हें डबल दूंगा, या तुम्हारे जेवर तुम बेच दो, मेरे बिजनेस में लगा लो, जबकि बिजनेस बेच दो क्या, वो जेवर ले लेता है अच्छे से प्यार से कमरे के अंदर, 4 दीवारी के अंदर, फिर जब लेके फिर वो जब बेचता है उसके पास, औरत के पास कोई सबूत भी नहीं रहता है बाद में कि वो बता सके मैंने इसको दिए थे। ठीक है ना, एक मेहर के बारे में वायलेंस होता है इकोनॉमिक। दूसरा होता है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जब किसी के नाम पे रहती है तो अक्सर देखा गया है, इवन लार्जली अगर हम कंट्री में देखा जाए तो औरतों के नाम पे प्रॉपर्टी बहुत कम है। अगर जॉइंट मान लीजिए मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं, बट यू नो व्हेन दे परचेज अ हाउस टुगेदर, सो इट इज़ इन द नेम ऑफ द मैन यूजुअली, एंड वुमन डज नॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि नेचुरली एक रिलेशनशिप है, एक पार्टनरशिप है, ट्रस्ट होता है एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल ट्रस्ट किया होता है, उसी पे तो शादी की बुनियाद होती है। और कल को मान लीजिए डिवोर्स हो जाता है, शादी नहीं चलती है, तो देयर इज़ नो वे फॉर अ वुमन टू प्रूव दैट शी हैड अ शेयर इन हाउस एंड शी इज थ्रोन आउट। ऐसे मेरे सामने कई केसेस है। एक लेडी है, अच्छे खानदान से बिलोंग करती है, बुजुर्गी में उसको, टीचर थी, रिटायर हो चुकी, बुजुर्गी में उसको बाहर फेंका गया, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, एंड इट्स नॉट कन्फाइंड टू वन केस, इट्स नॉट जस्ट एनेक्डोटल एविडेंस कि मैंने एक चीज़ को यहाँ पे लाके रख दिया। आपके सामने भी ऐसे केसेस आए होंगे फाइनेंशियल वायलेंस के? डेफिनेटली आते हैं जी। तो उसके अलावा बहुत एक बेसिक फाइनेंशियल वायलेंस है कि जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, एक वुमन के अपने बेसिक नीड्स होते हैं, मेडिकेशन, दवाई, या जो भी वुमन के, हाँ, सेल्फ केयर के, उसको 100 चीज़ें चाहिए होती, 10 चीज़ें चाहिए होती है, बेसिक नीड्स उसके, वो भी फुलफिल ना करना,
करना, या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं करना फुलफिल, बच्चों की फ़ीस ना पे करना, बेसिक जो भी घर के चाहे अखराजात हों या चाहे उस वुमेन के अपने पर्सनल अखराजात हों वो नहीं देना। थर्ड फॉर्म है कि उसको एम्प्लॉयमेंट, अगर इवन इफ़ शी इज़ केपेबल ऑफ अर्निंग, डूइंग अ स्मॉल और मतलब एनी जॉब, मे बी नॉट अ वाइट कॉलर जॉब, कोई भी जॉब वो करना चाहती है, कोई स्टार्टअप करना चाहिए, कोई छोटा मोटा कुछ करना चाहती है अपना स्टार्ट, उसको रोकना उस चीज़ से, वो भी एक फाइनेंशियल वायलेंस का फॉर्म है। या अगर वो ऑलरेडी वर्किंग है, मतलब वर्किंग मीन्स एम्प्लॉयड है, कहीं पे जॉब कर रही है, तो उसकी जो सैलरी है वो उससे ले लेना, या उसके ATM कार्ड को अपने पास रख लेना और उसको सिर्फ ट्रैवल के लिए पैसे देना। ऐसा भी होता है, इट हैपेंस इवन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फॉर टीचर्स। आई हैव ऑफन मेट टीचर्स जो अच्छा खासा 70-80,000 पर मंथ लेती हैं, बट उनको अपने ही उस सैलरी पे उनका हक नहीं है, इख्तियार ही नहीं है, बस ट्रैवल के लिए पैसे मिलते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर कोई अब मर्द दे रहा है, मान लीजिए अपनी वाइफ को अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए पैसे दे रहा है, बाकी चीज़ें दे रहा है, गाली दे के दे रहा है या गुस्से से दे रहा है या उसको प्लीड करना पड़ रहा है तब जाके दे रहा है। ये तो केस वहाँ पर जहाँ पे औरत कमाती है। इमेजिन वहाँ पर जहाँ वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, which is majority exactly. I'm talking about those who are dependent on the husband. वो दे रहा है, मान लीजिए 100 रुपये या 1000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 मंथ के दे रहा है, मगर तंग करके दे रहा है और इंटरोगेट इमोशनल वायलेंस करके दे रहा है, कैसे खर्च किया, क्यों खर्च किया, जरूरत नहीं थी। सो कहीं ना कहीं इस सब में ये सामने आता है कि डिसीजन मेकिंग ऑफ अ वुमन इज क्वेश्चनड, कहीं ना कहीं उसको अपने बारे में डाउट कराया जाता है, और एज अ रिजल्ट औरतें फिर खुद इसको इतना इंटरनलाइज करती हैं दैट दे थिंक दैट दे आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस। उनको खुद को एक डिसीजन मेकिंग इंसान खुद को नहीं समझ पाती है। इंफीरियर जब फील कराया जाता है, फिर उनके अंदर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। एक कुछ टाइम पहले एक प्रोग्राम था, तो उसमें एक हजरात बोल रहे थे अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान कि आप औरतें खुद को इन्फीरियर क्यों समझती हो। जैसे कि मैंने कंडीशनिंग की बात की, हमें वैसे ही कंडीशन किया जाता है कि हम इन्फीरियर हैं, हमारी अक्ल कम है, हम नहीं डिसीजंस ले सकते अपने लिए खुद। इवन साइमा लिंग्विस्टिकली या शुगुफ्ता लिंग्विस्टिकली भी जो चीज़ें हमने अपनाई हैं या जो हम फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं ना कहीं समाज का पल्स देखा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि इम्शिज़ानी अकल, जनाना अकल है एमिसन, विच मीन्स कि हमने ये कोडिफाई किया है कि औरत की अकल मीन्स कम है, और इसका मतलब ये है कि बिल्कुल लाइक वो तो इमोशनल वायलेंस है। हाँ कि ज़ानियन हिंद पर लोग उत्वाद ऐसी औरतों की तरह रो रहे हो। आप कह रहे थे महर का, ये तो उन एरियाज की बात है जहाँ पे लड़की को पता है महर क्या है। आई हैव बीन थ्रू दोज एरियाज जहाँ पे लड़की को पता ही नहीं है व्हाट इज महर, वो उसका हक है और उसको पता है। उस वक्त गाय रखी हुई थी, मैम कुछ बोला था उस वक्त जमीन दे देंगे, और शायद ये कहीं औरत का अपना डिसीजन होता ही नहीं कि उसको कितना महर चाहिए, उस पर घर के मर्द हजरात झगड़ रहे होते, तय कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं मेरी नज़र में ये भी आया है, क्योंकि मेरा रिसर्च भी इस पे है, तो मैंने ये देखा है कि जो कंसेंट होता है टू मैरी वो सही नहीं होता है औरत की तरफ से। तो उसके लिए देखा जाता है एक पार्टनर और सब कुछ तय किया जाता है, और आखिर में उसको फॉर्मेलिटी से बताया जाता है कि ये है, अब तुम मिल लो और हाँ कर लो इन अ वे, एंड शी इज़ नॉट रेडी, शी डजंट हैव दैट एम्पावरमेंट की उसको दी नहीं जाती है कि आप चुनो आपको क्या चाहिए एक लाइफ पार्टनर में। और शायद अगर वो बाय चॉइस मैरी करती है तो उसका जो ये मेंटल ट्रॉमा है वो डबल हो जाता है। कल को उसका हस्बैंड भी उसका सपोर्ट सिस्टम उसमें भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन सर्टेन केसेस उसका हस्बैंड भी वैसे ही टिपिकली बिहेव करने लगता है, एंड देन व्हेन शी वांट्स टू अप्रोच हर पेरेंट्स शी फील्स डबली सॉर्ट ऑफ बर्डन्ड कि तुमने तो खुद डिसाइड किया था, अब देख लो। इन मेनी केसेस इन पुलिस स्टेशन आई हैव फाउंड दैट पुलिस सेइंग कि ये तो इसकी चॉइस मैरिज थी, ये तो होना ही था, एज इफ अरेंज मैरिजेस में ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि जब एक लड़का लड़की की शादी हो, अब क्योंकि नेचुरली अब यंगस्टर्स हैं, नए ज़माने के लोग हैं, उस ट्रांजिशन जो ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ जा रहा था वो कहीं पार कर चुके हैं। तो जो नए लोग हैं जो घर बसाना चाहते हैं, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू सम डिग्री एम्पावर्ड, व्हाट रोल
रोल्स शुड दे अडॉप्ट ताकि डोमेस्टिक वायलेंस कम रहे, कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आई विल आस्क बोथ ऑफ यू। से यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल टॉपिक है, बिल्कुल, डेफिनेटली, एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एंड वी आवरसेल्व्स बीइंग वुमेन इन सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ वी मस्ट हैव गॉन थ्रू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो एक पॉजिटिव बात ये बताना चाहूँगी, जब हम लोग काम करते हैं विद वुमेन हु कम इन, वुमेन इन डिस्ट्रेस, वुमेन हु हैव फेस्ड वायलेंस, हम बहुत काम करते हैं ऑन बिल्डिंग देयर सपोर्ट सिस्टम। वी आइडेंटिफाई कि उनके लाइफ में कौन ऐसे पॉजिटिव लोग हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, Right. बी इट देयर पेरेंट्स, बी इट सिबलिंग्स, बी इट फ्रेंड्स, बी इट कजन्स, बी इट स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। जो कोई होता है सरपंच, कोई बहुत पॉजिटिव होता है, कोई नंबरदार बहुत पॉजिटिव होता है, कोई विलेज कम्युनिटी का हेड पॉजिटिव होता कोई है, मौलाना, कोई डेफिनेटली, यही आई वाज कमिंग टू दैट, एनी रिलीजियस लीडर जो पॉजिटिव होता है, वी कॉल देम टू आवर स्पेशल सेल। हम वहाँ पे उन लोगों से डिस्कस करते हैं, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं उस सपोर्ट सिस्टम को, उस वो औरत के लिए। और अगर उसके पास नहीं है फॉर एग्जांपल सपोर्ट सिस्टम, अगर उसने अपनी मर्जी से शादी की और पेरेंट्स नाराज़ हैं, भाई बहन नाराज़, उनको भी हम बुलाते हैं और उनसे हम बात करते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर कराते हैं। जस्ट बिकॉज इसने शादी अपनी मर्जी से की, ये आपकी बेटी नहीं रही क्या? इसके टाइज आप इसके साथ, mean that, you know, she's she no can be longer your violated आराम से? daughter. हाँ. Doesn't mean that. कमिंग टू दिस पॉइंट, इसके साथ एक रिलेटेड पॉइंट है। अगर बाहर की कोई औरत यहाँ पे होती है जिसकी शादी यहाँ होती है और जिस वजह से उसके कट ऑफ हो गया होता है, She has no support. She is so vulnerable to violence. उसके साथ ज़्यादा वायलेंस होता है, Because she has no वजह ये, support system. she has no support system. इसीलिए हम बहुत कोशिश करते हैं कि सपोर्ट सिस्टम स्ट्रेंथन हो। और ये जैसे आपने बोला हमारे यंगस्टर्स के लिए क्या होना चाहिए, यंगस्टर्स के लिए यही होना चाहिए कि उनको उनसे ज़्यादा उनके जो पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, be supportive towards both. I'm not saying just women. Be supportive towards men and women. ये मत सोचो कि अब इसने शादी अपनी मर्जी से की तो अब इसकी गलती है, इसका डिसीजन है, जो है इसने किया, ठीक है ना। तो जितना हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करो। और एक हमारे पास कुछ केसेस आए थे जिसमें भाइयों ने छोड़ दिया, पेरेंट्स हैं नहीं, भाइयों ने छोड़ दिया, फिर वो बहन के पास रह रही थी औरत। तो हमने उसकी बहन को बोला ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हारी बहन है, बचपन से तुम्हारे साथ रही है। जबकि मुझे ये लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी फॉर एवरीवन टू प्रोवाइड सपोर्ट ईच अदर, नॉट जस्ट द वुमेन बट ऑल्सो फॉर द मैन। अगर अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, ये दैट डजंट मीन कि अब उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही हंकी डोरी चलेगी, या अगर नहीं चल रही है तो अगर आपस में कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं तो हम उन चीज़ों को एड्रेस ना करें। राइट। शगुफ्ता, सेम क्वेश्चन टू यू कि जो यंग लड़के लड़कियां दे वांट टू मैरी एंड दे वांट टू स्टार्ट अ लाइफ, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए ताकि डोमेस्टिक अब्यूज़ ना आए शादी में या डोमेस्टिक वायलेंस ना हो? मैं आपको बताऊंगी, अगर हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव से जाएं, एक मर्द को एक औरत का लिबास बनाया गया, एक औरत को मर्द का, इट्स नॉट दिस लिबास मीन्स कि उस मर्द को जो भी एक लड़की में, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन इज़ परफेक्ट, कोई ऐसी गलती लगे, रादर देन टेलिंग दैट टू सम अदर पर्सन, उछालना उसके बजाय, उसका कैरेक्टर, उसकी कोई गलती, उसके खाने पकाने पे, उसके पहनावे पे, उसके he should be a friend to her. मैं सोसाइटी की बाद में बात करती हूँ, मैं थर्ड पर्सन्स की बात में। मुझे लगता है अगर एक लेडी के साथ उसके हस्बैंड का सपोर्ट हो, she can do wonders, she can handle everything, because ये कहते हैं कश्मीरी में भी, अगर एक खानदार में पन्नस खानदार सुन सपोर्ट आसन कहें, पूरी दुनिया हंस, वो उसको बिखरा हुआ लगता है अपना। हाँ, अपने हस्बैंड का सपोर्ट हो, बी इट कि उसके साथ कोई ना हो, शी फील्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। क्योंकि इमोशनल वेलबींग एक इंसान की बहुत मायने रखती है। जो आपके करीबी लोग हैं, जब वो आपके साथ होते हैं, यू फील कंटेंट। और योर स्पाउस इज द ओनली पर्सन जो आपको बाकी लोगों से ज़्यादा समझता है, जो आपको समझना चाहिए या जो आपको बाकी लोगों से ज़्यादा जानना चाहिए। तो मुझे लगता है, या अगर हम अनमैरिड लड़कियों की बात करें, हर पेरेंट्स, हर सिबलिंग्स, मुझे लगता है ज़्यादा सिबलिंग्स से ज़्यादा पेरेंट्स का सपोर्ट अगर एक बच्ची को हो, एक लड़की को हो, तो शी डजंट नीड इट।
और जी साइमा, एडिंग टू व्हाट शी इज सेइंग हाँ। कि उसको रूट पे कैसे, जड़ तक कैसे जाए, एक हस्बैंड कैसे सपोर्ट करेगा अपनी वाइफ को, कैसे अंडरस्टैंड करेगा जब एक बॉय की, एक लड़के की हम तरबियत वैसी करें, उसकी अपब्रिंगिंग वैसी करें। हम क्या करते हैं, हम बेटी को तैयार करते हैं कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, पराए घर जाना है, तुम ये सीखो, तुम वो सीखो। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने बेटे को बोलें कि कल को तुम्हारी लाइफ में कोई आने वाला है, योर वाइफ इज गोइंग टू कम टू दिस हाउस, कल को वो क्या कहेगी अगर तुम कपड़े दिखलाओगे, अगर तुम सब कुछ सामने चाहोगे। Absolutely, absolutely. Be a responsible person. Absolutely. We have to do something of this sort कि जैसी upbringing हो, लड़के भी रिस्पॉन्सिबल हो और लड़कियां भी रिस्पॉन्सिबल हो। एक रिस्पॉन्सिबल जनरेशन को हमें अपब्रिंग करना है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन टुडेज टाइम्स। पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट है, बट ये कोशिश करनी है कि लड़कों को भी एज पर देयर एज, जो अपनी उम्र के हिसाब से जो काम वो कर सकते हैं, वो काम अपने खुद करें, Right. और वो रिस्पेक्ट से बिहेव करे अपने। सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे लगता है वो ड्यूटी भी हमने एक औरत को ही रखी है कि बच्चों को संभालने की। सही। तो बाद में क्या होता है कि वही औरत एक औरत की दुश्मन बन जाती है। राइट। शी नीड्स ना वो हेल्पिंग एंड लविंग हस्बैंड फॉर हर डॉटर। अब अगर यही हस्बैंड इसका बेटा बन के अपनी बीवी की किसी भी किस्म की मदद करे, किसी भी किस्म की, तो लगता है जोरू का गुलाम बन गया। वो बोलते हैं जोरू, हाँ मेरा दामाद माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मेरी बेटी की बहुत केयर करता है। हाँ ये तो है ना रनमुरीद। हाँ, these are the typical words. That's what I'm saying. No, absolutely. कहीं ना कहीं we have empowered women so much. We talk about women empowerment, but we don't talk about society. We don't talk about the systems and families and men who are willing and ready to accept these empowered women, who are willing to extend their support. क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आज एक औरत भी बाहर जाती है, काम करती है, तो कहीं ना कहीं जो वो स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स थे, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स थे, उनको कहीं ना कहीं चैलेंज करने की ज़रूरत है। अगर औरत भी घर पैसा ला रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा भी किचन में जाके खाना पकाए। अगर माँ एक बच्चे को जन्म दे रही है तो कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि बाप उसकी नापी चेंज करे या उसको नहलाए। तो जब ये एक मैरिज को चलाना दो लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है तो शायद आसान होगा, क्योंकि ट्रेडिशनली ये सिर्फ एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसमें अब्यूज़ भी होता था, बाकी चीज़ें होती थी, औरतें सहने को तैयार भी थी किसी हद तक। लेकिन अब हमने उनको एम्पावर किया है फाइनेंशियली, emotionally, to some extent at least, they are willing to question, they are challenging the norms. तो हमें लगता है कि शायद ये ज़्यादा कर रही हैं, तो फिर शायद उस किस्म की एजुकेशन, उस किस्म की एम्पावरमेंट पहले हमें देनी नहीं चाहिए। आप लॉज को ही देख लीजिए, हमारे पास कितने कवानीन हैं, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर विद सपोर्ट वीमेन, फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन ऑफ प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, देयर आर सो मेनी एक्ट्स, बट पॉसिबली ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर इन चीज़ों को समझें और इनको कहीं ना कहीं हम अप्लाई करें. So I think we'll end the conversation here, and I'm very thankful to Saima and Shagufta, both of you, particularly because at this time of the year, we have these 16 days of activism for violence against women. We basically try to say that violence against women is not acceptable, and this year's theme, as Saima was saying, that we should take the action now. It's time to act now. Time to act now. And these 16 days end on 10th of December, which is International Human Rights Day, also emphasizing on the fact that a woman's right is also a human right. And what happens within four walls of a home is not a private affair anymore. It is a social concern. It should not just concern women, but also men. It should concern the larger society. And men and women are equal partners in laying the foundation of a happy, healthy, and safe family, a happy, healthy, and safe home, from where happy, healthy, and safe children can come out, which can make a happy, healthy, and safe nation. I think we'll end the conversation here. And ये हमारा जो कोशिश, जो हमारा पॉडकास्ट है, अब बैलेंस, इसकी कोशिश यही रहती है कि आपके सामने उन मुद्दों को लाए, उन इश्यूज़ को लाए विच कंसर्न विमेन, और आपके सामने उन औरतों से गुफ्तगू की जाए जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है समाज की तरफ, जो ऑथर्स हैं, जो अचीवर्स हैं, या जो सर्वाइवर्स हैं, स्ट्रगलर्स हैं. तो फिर आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Thank you, Saima. Thank you, Shagufta. Thank you so much, ma'am.